Hello Deltas, hope you all are doing well. Today we are here with the PYQs of conic section. In this video, we will discuss the questions related to parabola, circle, ellipse and hyperbola. So let's begin the topic. First question देखो, the area of the curve x is equal to a cos t, y is equal to b sin t, where t varies from 0 to 2 pi. तो की करना है फर्स्ट ऑफ ऑल a ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ x upon a ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ cos t ਦੇ ਐਂਡ y upon b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ sin t ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ cos square t plus sin square t ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 तो उतो अपने को इस कर्व की इक्वेशन की आ जाएगी x upon a square plus y upon b square is equal to 1. This is the standard equation of ellipse and ellipse the area के इक्वल होता है pi ab. This is the right answer. Next question देखो number of tangents to the hyperbola this through 4, 1. आपा की फाइंड करने हैं number of tangents. जे कोई पॉइंट हाइपरबोला दे ऊपर लाई करदा है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1 जे हाइपरबोला दे अंदर लाई करदा है फिर नंबर ऑफ टेंजेंट्स 0 जे हाइपरबोला दे बाहर लाई करदा है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने है 2 तो आपा चेक करते हैं कि ये पॉइंट इस हाइपरबोला दे रिस्पेक्ट से किथे लाई करदा है तो देखो अपने को आपा किदी वैल्यू चेक करनी है x² upon 4 minus y² upon 3 minus 1 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ 4 4 ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪਨ 3 ਮਾਈਨਸ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂजेंट्स ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ठीक है. The next question देखो E and E dash are the eccentricities of the hyperbolas this and this. दो hyperbolas देते हैं उन्ना दे eccentricity first वाले दी E है and next दी E dash तो अपन standard formula apply करेंगे इत्थे अपन ਨੂੰ पता है कि E square किदे equal ਹੁੰਦਾ है 1 plus B square upon A square ठीक है. तो हुन की करांगे इथों देखो b² upon a² किदे इक्वल आ गया 1 e² minus 1 नेक्स्ट देखो अपने को इस हाइपरबोला दे रिस्पेक्ट च सेंट्रिसिटी e dash square is equal to 1 plus a² upon b²। तो हुन देखो अपने को इथों a² plus b² ਦੀ ਵੈਲਿਊ e dash square minus 1 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ a² ਨਾਲ a² ਕੈਨਸਲ b² ਨਾਲ b² ਕੈਨਸਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ e² minus 1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ e dash square minus 1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ e² e dash square minus e square minus e dash square plus 1 हुन देखो इधर प्लस 1 है उधर जाके minus 1 एंड इस टर्म्स नु भी उधर ले जाओ तो अपने को की आ जाऊगा e square plus e dash square is equal to e square e dash square हुन e square e dash square नाल आप डिवाइड करो पूरी इक्वेशन नु we will get something like this। तो देखो बाय ऑप्शंस केड़ा मैच कर रहे हैं दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला दिस डायरेक्टर सर्कल की हुंदा है किसी भी कर्व दा ठीक है। डायरेक्टर सर्कल दा मतलब है सपोज करो अपने को एक कर्व सी सर्कल सी एंड आपा परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इस पॉइंट तो दो टेंजेंट ड्रॉ कीते एंड दोवें टेंजेंट की सी परपेंडिकुलर तो इस परपेंडिकुलर टेंजेंट्स दे लोकस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्ट इक्वेशन है हाइपरबोला दे डायरेक्टर सर्कल दी इक्वेशन ਹੁੰਦੀ है x² plus y² is equal to a² minus b² एंड ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ रेडियस ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ √a² minus b²। नेक्स्ट देखो सेंटर ऑफ द कर्व दिस कर्व ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ एंड ਆਪਾਂ सेंटर फाइंड करना है सेंटर किवें फाइंड करना है जो भी अपना कर्व है
ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰੋ then put it equal to 0 ਫਿਰ y ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 8x ਇੱਥੇ 0 ਇੱਥੇ 16 ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਭ 0 ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ with respect to x ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 8x is equal to -16 x ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2 y ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 0 18y -18 is equal to 0 and ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -2, 1 ਕਲੀਅਰ ਹੈ बहुत इजीली विद इन सेकेंड्स ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਵ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੋਨਿਕ ਦਿਸ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ x² ਐਂਡ y² ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋ 4 - 3 1 एंड डिनोमिनेटर च केड़ा नंबर लिखना है जेड़ा इन्हां दोवां चों ग्रेटर नंबर है तो 4 आंसर की आ गया 1/2 तो डायरेक्ट इस ट्रिक दे नाल आपां इसेंट्रिसिटी एलिप्स दी फाइंड कर सकदे हां किवें करना है दोबारा देखो तो x² y² दे जेडे कोएफिशिएंट्स है उन्हां नूं पहला सबट्रैक्ट करना है थल्ले डिनोमिनेटर च जेड़ा नंबर इन्हां दोवां चों वड्डा है ओ एंड अंडर रूट क्लियर है Next question देखो the number of tangents which can be drawn from 1, 2 to the circle x² plus y² is equal to 5 again आप वही चीज पहला चेक करना है कि ये पॉइंट सर्कल दे ऊपर लाई कर दे सर्कल दे अंदर है या सर्कल दे बाहर है क्लियरली आप देख सकते हैं कि 1, 2 इत्थे पुट कर रहे हैं तो इस इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई कर रहे हैं 1 + 4 is equal to 5 it means ये पॉइंट अपना सर्कल दे उत्ते लाई करदा है जे सर्कल दे उत्ते है इट मीन्स नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे 1 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स इन्हां 3 पॉइंट्स तो पास होने वाला सर्कल तो आपां जनरल इक्वेशन लिखांगे सर्कल दी की हुंदी है x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0 क्योंकि 0 0 तो पास कर रहा है तो अपने को c की आ जाऊगा 0 एंड जदों a, 0 पुट करांगे की आ जाऊगा a² + 2ga is equal to 0 a + 2g is equal to 0 इत्थों g दी वैल्यू आ जाऊगी -a/2 एंड सिमिलरली जदों ਆਪਾਂ 0, b पुट करांगे f अपने को आ जाऊगा -b/2 एंड सेंटर दे कोऑर्डिनेट्स हुंदे आ -g -f तो अपने को आंसर की आ जाऊगा a/2 b/2 नेक्स्ट देखो द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस सर्कल दी इक्वेशन दिती है एंड आप डायमीटर दी इक्वेशन फाइंड करनी है एंड व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन जेड़ा डायमीटर है वो ओरिजिन तो पास कर रहा है तो देखो किवें करांगे पहला आप कॉमन लेने ना चो x कॉमन लिया x -6 y +2 तो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन की हुंदी है x - x1 x - x2 plus y - y1 and y - y2 is equal to 0 तो उतो अपने कोल पॉइंट की आ जाऊगा x1 0 y1 भी 0 एंड x2 कितना आ जाऊगा 6 एंड y2 कितना आ जाऊगा अपने कोल -2 हुन देखो ये अपने कोल एंड पॉइंट्स आ गए डायमीटर दे आपा इक्वेशन फाइंड करनी है डायमीटर दी तो देखो आपा डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं केड़े इक्वेशन च 6, -2 सैटिस्फाई कर रहा है 6, -2 इस इक्वेशन च सैटिस्फाई कर रहा है इट मींस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायमीटर नेक्स्ट देखो द सर्कल ऑन द फोकल रेडियाई ऑफ अ पैराबोला एज द डायमीटर टचेस द देखो हुन अपने कोल इधर देखो आपने कोल की है स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax एंड कहंदे इत्थे अपने कोल की है
ਫੋਕਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਰਟੈਕਸ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਰੇਡੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੀਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, मतलब इनू आपा की ट्रीट किया एज अ डायमीटर एंड एक सर्कल बनाता। ठीक है, उस सर्कल बारे दसना है। वो सर्कल किनू टच करूगा, वो सर्कल इस लाइन नू टच कर रहा है। ये लाइन की है अपने कोल टेंजेंट एट दी वर्टेक्स। दिस इज द राइट आंसर। ये सर्कल अपना एक्सिस नू टच नहीं कर रहा, डायरेक्ट्रिक्स अपनी इधर है उन्होंने भी टच नहीं कर रहा, टेंजेंट एट दी वर्टेक्स उन्होंने टच कर रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखो द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। दिस अपने कोल कॉनिक नु देख के पता लग रहा है कि की है अपना हाइपरबोला। इहदे लई भी डायरेक्ट ट्रिक यूज करांगे। किवें देखो एक्स स्क्वायर दा कोएफिशिएंट की है अपने कोल 1, वाई स्क्वायर दा कोएफिशिएंट की है माइनस नहीं लेना। ठीक है 4, क्योंकि जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन इनू इस तरह पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है इदा समझो। हुण देखो जेडे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे कोएफिशिएंट्स है उन्होंने प्लस करो, किया गया 5, वाई स्क्वायर दा कोएफिशिएंट 4 इदा रूट तो किया गया √5 over 2। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द सम ऑफ द फोकल रेडियाई from any point of the ellipse is this। हुण देखो अपने कोल 144 नाल डिवाइड करांगे तो अपने कोल आ रिक्वायर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह दी दिखूगी। एंड डायरेक्ट आपन नूं पता है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस किदे इक्वल हुंदा है 2a एंड a दी वैल्यू कितनी अपने कोल इत्थे 4 ते कितना आ गया आंसर 8। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द फोकस 3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x + 3 इज इक्वल टू 0। देखो अपने कोल कोऑर्डिनेट प्लेन है। हुण देखो अपने कोल जो फोकस है वो 3,0 ते है एंड डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -3 ते। तो अपने कोल जो पैराबोला होगा वो इस तरह का बनूगा। स्टैंडर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड जो फोकस है वो किवें डिनोट करदे आपां a,0। इट मींस a दी वैल्यू कितनी है 3, इत्थे पुट करो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। दिस पैराबोला दिता होया एंड आपां इक्वेशन फाइंड करनी है डायरेक्ट्रिक्स दी। तो देखो अपने कोल पैराबोला स्टैंडर्ड अपना इस फॉर्म दा है 5 नु इधर ले गए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इस दी डायरेक्ट्रिक्स दी इक्वेशन हुंदी है x इज इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू -a दी वैल्यू है 1/5 तो किया गया 5x + 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस। अपा सर्कल दी इक्वेशन फाइंड करनी है। अपने सर्कल एंड इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है एंड जो सर्कल दी इक्वेशन फाइंड करनी है वो सर्कल पास कर रहा -2, -1। जे सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो इत्थों तक अपनी इक्वेशन सेम होगी। बाय ऑप्शंस भी आप पता कर सकते हैं। कोई भी और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जे इदा नहीं है तो आप ये पॉइंट भी पुट करके देखांगे। जे किसी दो च इत्थों तक 2 इक्वेशंस सेम होन तो उन्हां विच आपां इस पॉइंट नूं पुट करके देखांगे। जिस इक्वेशन दे विच पॉइंट पुट होके सैटिस्फाई होगी वो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। नेक्स्ट देखो if the line this is the tangent to the circle x square plus y square is equal to 5 then the value of c is। अपने को रिजल्ट है y is equal to mx plus c is tangent to the equation y square plus x square is equal to r square if c square is equal to r square into 1 plus m square। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपना किया गया थे 5 1 प्लस m स्क्वायर m कितना अपने को 2 2 दा स्क्वायर 4
4 प्लस 1 5, 5 5 ज़ा 25, सी स्क्वायर की आ गया 25, इथों सी दी वैल्यू आ गई 5। क्लियर है? नेक्स्ट देखो द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला दिस। पैराबोला दी इक्वेशन दी हुई है एंड ਆਪਾਂ लेटेस्ट रेक्टम दी इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन नहीं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है, ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ x² ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? x² ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ तो mod ऑफ उत्ते y ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ -2 ਥੱਲੇ x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2। दिस इज द राइट आंसर। बाय चांस अपने गिवन इक्वेशन दे अंदर अपन y² नजर आ रहा तो उत्ते कोएफिशिएंट ऑफ x लेना थल्ले कोएफिशिएंट ऑफ y²। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ द एलिप्स दिस। सेंटर किवें फाइंड कर दिया? पार्शियली डेरिवेट करांगे विद रिस्पेक्ट टू x फिर विद रिस्पेक्ट टू y दोवां नूं पुट करो इक्वल टू 0। तो देखो अपने कोल जदों x दे रिस्पेक्ट च करांगे तो 8x + 16 = 0। इथों x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड जो आप y दे रिस्पेक्ट च कर रहे हैं 18y - 18 = 0। इथों y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आंसर आ गया -2, 1। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो two circles of equal radii are cut orthogonally if their centers are 2, 3 and 5, 6 then the value of r is। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਰਕਲਸ ਆਰਥੋਗੋਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ c1 c2 ਸਕੁਆਇਰ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ = r1 ਸਕੁਆਇਰ + r2 ਸਕੁਆਇਰ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ r ਸਕੁਆਇਰ + r ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। 5 - 2 3, 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9, 6 - 3 3, 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9। ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 = 2r², r² = 9 एंड इथों अपने कोल r की आ जाएगा 3। The next question देखो the circle x² + y² - 4x + 4y + c touches both the axes। सर्कल दोवें एक्सिस ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਸਰਕਲ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਤਾਂ g² = f² = c। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 2gx + 2fy + c = 0 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ g ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ -2 f ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 4 = c। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो in ellipse the distance between the focus is 6 and its minor axis is 8 then its eccentricity। तो देखो फोकस दे विच डिस्टेंस कितना है 6 मतलब 2ae के इक्वल आ गया 6 इथों ae दी वैल्यू आ गई 3 एंड माइनर एक्सिस मतलब 2b = 8 b कितना आ गया 4 एंड अपन को पता है b² = a² × 1 - e²। b² = a² - a²e²। b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 16 = a² - ਇੱਥੇ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9 a² ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਐਂਡ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 - b² / a²। तो 1 - b² कितना है 16/25 एंड सॉल्व करांगे तो की आ जाएगा 9/25 तो की आ गया अपने कोल 3/5। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट देखो द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला दी इक्वेशन दी हुई है एंड अपन डायरेक्ट्रिक्स दी इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले इन्हों आप स्टैंडर्ड पैराबोला की तरह बनावांगे बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। तो देखो y² + 4y + 4 करता एंड -4 कर दो इक्वल। ठीक है हुन देखो आपने कोल y + 2 द होल स्क्वायर बन गया एंड -4 + 2 किया गया -2 + 4x = 0।
y plus 2 the square is equal to minus 4x plus 2 and y plus 2 the square is equal to minus 4 common लो x minus 1 by 2। ठीक है, ਹੁਣ देखो ये अपना स्टैंडर्ड किस पैराबोला वर्गा लग रहा है, y square is equal to minus 4ax। ठीक है, अपना इस पैराबोला तरह लग रहा है एंड इस इक्वेशन ਦੀ जो डायरेक्ट्रिक्स ਹੁੰਦੀ है वो अपने कोल की ਹੁੰਦੀ है x is equal to a। ठीक है, तो अपने कोल x किन्ने, तो अपने कोल a ਦੀ वैल्यू किन्नी है इत्थे 1, तो x माइनस 1 बाई 2 आपने कोल कैपिटल x है इज इक्वल टू 1 क्योंकि a ਦੀ वैल्यू 1 है एंड इथों x कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ प्लस तो x is equal to 3 by 2। this is the right answer। next देखो in the ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 0 is equal to 1 and the hyperbola this have in common। कहते ellipse ਤੇ hyperbola दोवें इक्वेशन सेम है जस्ट इथे प्लस माइनस ਦਾ फर्क है मतलब a ਤੇ b अपने कोल सेम है। कहते hyperbola ਤੇ ellipse ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸ सेंटर ਤੇ वर्टिसेस दोवां ਦੇ सेम होंगे। नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस हाइपरबोला दी इक्वेशन दी हुई है एंड की क्या कि ਆਪਾਂ टेंजेंट दी इक्वेशन ਲੱਭਣੀ है ਜਿਹੜੇ टेंजेंट्स है वो इस इक्वेशन दे की है पैरेलल। ਹੁਣ देखो अपने टेंजेंट्स इस इक्वेशन दे पैरेलल है ਇਹਦਾ मतलब इस फॉर्म दे होंगे। ठीक है, y is equal to 3x plus c। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है तो स्लोप अपना सेम होगा एंड अपने को हाइपरबोला दी इक्वेशन पूरी इक्वेशन ਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड करांगे x square upon 3 minus y square upon 2 is equal to 6 एंड अपने को रिजल्ट है डायरेक्ट। देखो जे x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 अपने को जे ही इक्वेशन है हाइपरबोला दी एंड y is equal to mx plus c इस गिवन हाइपरबोला ਲਈ टेंजेंट होगा फिर c के दे इक्वल सी प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही चीज हुन आप अप्लाई करांगे इथे तो देखो आपा c दी वैल्यू फाइंड करनी है c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट पहला की क्या है a स्क्वायर कितना है 3 m स्क्वायर m कितना है 3 दा स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर कितना है 2। तो देखो अपने को 9 3 जा 27 माइनस 2 25 तक ही आ गया अपने को प्लस माइनस 5 तो c दी वैल्यू प्लस माइनस 5 तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। ये अपने को पैराबोला इस फॉर्म दा है y स्क्वायर माइनस 4ax एंड ਇਹਦਾ अपने को फोकस किदे इक्वल ਹੁੰਦਾ है स्टैंडर्ड है ये अपने को पैराबोला कुछ इस तरह ना ਹੁੰਦਾ है। ठीक है एंड ਇਹਦਾ फोकस की ਹੁੰਦਾ अपने को x is equal to minus a। ठीक है माइनस a x अपने को की है x माइनस 3 माइनस a किन्ना 4a ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 2 ਤੇ ਇੱਥੋਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। तो देखो x1 है एंड कोऑर्डिनेट की ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -a,0 y कोऑर्डिनेट की होगा 0 कैपिटल y 0 एंड स्मॉल y भी 0 एंड की आगे 1,0। नेक्स्ट देखो द फोकस ऑफ द पैराबोला दिस इज 0,2। ठीक है देन द वैल्यू ऑफ k ਆਪਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ x² is equal to ky -3
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई माइनस 3/k के कॉमन ले लिया ऊपर नीचे 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵਰਗਾ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ k/4 ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 0, a ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਦੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ y minus 3/k is equal to k/4 y आ जाएगा k/4 plus 3/k and अपन नु की दिता है 0, 2 y कोऑर्डिनेट कितना है 2 तो अपने कोल की आ गया k/4 plus 3/k is equal to 4 ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈ मतलब 4 ऑप्शंस है चारे ऑप्शंस ਨੂੰ ਇੱਥੇ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ k² plus 12/4k is equal to 4 ठीक है अपने कोल की आ जाएगा k² plus 12 is equal to ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 8k k² minus 8k plus 12 is equal to 0 ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 2 and 6 ठीक है by options देखो 6 is the right answer next देखो the locus of the point of the intersection of the tangents to the circle this circle the equation ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ points ਦੇ locus find ਕਰਨਾ ਹੈ such that ਕਿ ਉਸ point ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੋ tangents ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ angle difference ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 degree ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੋਕਸ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ डायरेक्टर सर्कल चाहे अपने को एलिप्स होवे चाहे पैराबोला होवे चाहे अपने को हाइपरबोला होवे चाहे सर्कल होवे उन्ना टेंजेंट्स का जो लोकस है वो की हुंदा अपने को एक डायरेक्टर सर्कल है कि वो एक सर्कल ही सो दिस इज द राइट आंसर आप जस्ट शेप दसनी सी क्यों किस शेप दा लोकस है नेक्स्ट देखो इफ द सर्कल्स दिस दो सर्कल आपन दिते हुए है एंड दोवें सर्कल्स की कर रहे हैं टच कर रहे एक दूसरे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਰਕਲਸ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ देयर ਸੈਂਟਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r1 plus r2 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਲਿਖੋ c1 ਫਰਸਟ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ -a, 0 second circle ਦਾ 0, -b and first circle ਦਾ radius √a² - c ਇੱਥੇ √b² - standard equation ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I think ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ √a² + b² is equal to √a² - c plus √b² - c ਹੁਣ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੂਟ ਹਟ ਜੂ ਇੱਥੇ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਐਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੈਨਸਲ -c ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 2c is equal to 2 into √a² - c √b² - c 2 ਨਾਲ 2 cancel c is equal to √a² - c √b² - c ਹੁਣ squaring both sides कर दो c² is equal to a² - c b² - c c² is equal to इन्हों ओपन कर दो a² c minus b² c plus c² आ चीज कैंसल आउट तो अपने कोल a² b² is equal to इतने अपने को माइनस है
ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है, हुण की करना है, ਆਪਾਂ इत्थों सी कॉमन लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी। थोड़ा मोल्ड कर रहे हैं, जस्ट सी नू इधर चक के लेके आए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नू उधर, 1/c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हुण इहदे थल्ले लेके जावांगे तां 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन सी मतलब सी दी पावर -1 एंड ए दी पावर -2, बी दी पावर -2। इस तरह करांगे इस क्वेश्चन नू। If a circle passes through 2, 0 and 0, 4 and the center at x-axis, then the radius of the circle is। तो देखो अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सेंटर ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ -g, -f एंड सेंटर लाई किथे कर रहे हैं x एक्सिस ते। x एक्सिस ते y वाला कोऑर्डिनेट 0, इट मींस -f अपने कोल की है 0, f दी वैल्यू की है 0। हुण देखो इत्थे f दी वैल्यू 0 पुट करो तो अपने कोल सर्कल दी इक्वेशन कुछ इस तरह दी दिखूगी। हुण देखो पहला फर्स्ट पॉइंट पुट करो, x दी जगह ते 2 एंड y दी जगह ते 0। x दी जगह ते 2 पुट करांगे, y दी जगह ते 0, तो अपने कोल इक्वेशन इस तरह दी आ जाएगी। हुण देखो जदों x दी जगह ते 0 पुट कर रहे हैं एंड y दी जगह ते 4, इसे इक्वेशन च y दी जगह ते 4 पुट कर रहे हैं एंड x दी जगह ते 0, तो अपने कोल c दी वैल्यू की आ जाएगी उत्थे -16। इत्थे -16 पुट करांगे तो की आ जाएगा अपने कोल 4 - 16 अपने कोल इत्थे आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। g दी वैल्यू की आ जाएगी अपने कोल 3 एंड आपां की फाइंड करना सी रेडियस किदे इक्वल हुंदा अपने कोल f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c। ठीक है, वैल्यूज अपने कोल है f दी वैल्यू 0, g दी वैल्यू पुट करो अपने कोल 9 माइनस c दी वैल्यू -16 माइनस माइनस प्लस the root 25, it means आंसर की आ गया अपने कोल 5। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, a jet of an enemy is flying along the curve। कहंदे jet is curve दे along, parabola दे along fly कर रहा and a soldier is placed at a point 3, 2। soldier 3, 2 ते प्लेस किया and अपन nearest distance find करना है। ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस मींस शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फाइंड करना है कि डिस्टेंस अपना मिनिमम होवे सोल्जर एंड जेट दे अंदर। ठीक है, तो किवें करांगे इस क्वेश्चन नु। देखो हुण देखो इस पैराबोला दे ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, p पॉइंट ले लिया x, y, जा आपां की लिख सकदे हां p पॉइंट लिख सकदे हां x, x² + 2 लिख सकदे हां। ठीक है, क्योंकि y अपना किदे बराबर है x² + 2 एंड अपना पॉइंट की है 3, 2। ठीक है, सोल्जर किथे प्लेस किया है 3, 2। इन्ना दोवां दे विच डिस्टेंस की होना चाहिए मिनिमम। तो d अपना की है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किवें फाइंड करांगे x - 3 द होल स्क्वायर प्लस x² + 2 - 2 द होल स्क्वायर तो आ जाऊगा x⁴। एंड ਆਪਾਂ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो d² इज इक्वल टू x - 3 द होल स्क्वायर प्लस x⁴। हुण ਆਪਾਂ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी मैक्सिमम मिनिमम वाली प्रॉपर्टी यूज करांगे। ਆਪਾਂ इस डिस्टेंस दी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ਇਹਦਾ डेरिवेटिव पुट करांगे, फाइंड करांगे ਉਹਨੂੰ इक्वल टू 0। ठीक है, तो की करांगे पहला इनू ले लो, इनू आपां f ले लेने आ। f अपना किदे इक्वल है x - 3² प्लस x⁴। f डैश x डेरिवेटिव 2 * x - 3 प्लस 4x³ इनू की करना है इक्वल टू 0। तो देखो अपने कोल की आ जाऊगा
2x माइनस 6 अपने कोल प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। 2 नाल डिवाइड कर दो, x माइनस 3 प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, 1 minus 3 minus 2 plus 2 into 1 2, तो ओवरऑल 0 आ रहा है। x is equal to 1 ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x is equal to 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, f ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 प्लस अपने कोल अगे आ गया 4 3 12 x स्क्वायर। हुण देखो 1 पुट करो, 1 पुट करदे आ ते इत्थे की आ रहा अपने कोल f डबल डैश 1 1 पुट करदे आ तां आंसर की आ रहा है ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव। मतलब x इज इक्वल टू 1 ते आपां नू d स्क्वायर दी वैल्यू मिनिमम मिल रही है। x इज इक्वल टू 1 ते आपां मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ते इत्थे x दी जगह ते की पुट कर दो 1। इत्थे 1 तो 1 दी पावर 4 1 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर करांगे 4 4 प्लस 1 5 तो की आ जाऊगा रूट 5। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस। सर्कल दी इक्वेशन दी हुई है एंड आप सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गिवन सेंटर दी इक्वेशन स्टैंडर्ड सर्कल दी तरह बनाने आ। स्टैंडर्ड इक्वेशन दी तरह की करना है, आप 9 नाल डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 बाय 9x माइनस 36 बाय 9y माइनस 107 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हुण देखो आपां की फाइंड करना है, सेंटर। अपने को इक्वेशन की हुंदी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड सेंटर के इक्वल हुंदा है माइनस g माइनस f। ठीक है, हुण इत्थे अपने कोल g दी वैल्यू कितनी आ जाएगी, g दी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने कोल माइनस 1/3 एंड f दी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने कोल, ते कैंसल आउट करो 4 ते आ जाएगी माइनस 2। देखो अपने कोल माइनस g माइनस f तो 1/3 2। बाय ऑप्शंस देखो ये दोवें दा डिस्कार्ड, ये भी अपने आंसर्स नहीं हो सकते। हुण आपां फाइंड करदे आ रेडियस। रेडियस के इक्वल अपने कोल रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c कितना है माइनस 107 अपॉन 9। तो r इज इक्वल टू रूट इन्हों ऐड करो 108 अपॉन 9 प्लस 4 कटिंग करके इत्थे आ जाऊगा अपने कोल 12 12 प्लस 4 16। तो आंसर की आ गया अपने कोल 4। ठीक है, तो बाय ऑप्शंस अपने कोल कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो आंसर की है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला दिस। एक्सिस आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं जे अपना गिवन पैराबोला दे अंदर y स्क्वायर आ रहा फिर पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड जे x स्क्वायर आ रहा फिर पार्शियली डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x। इत्थे y स्क्वायर आ रहा y दे रिस्पेक्ट च पार्शियली डेरिवेट करो तो की आ जाऊगा 2y प्लस इत्थे 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द राइट आंसर। डायरेक्ट एक्सिस दी इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। The next question देखो, the center of the circle passing through 0, 0 and 1, 0 and touching the circle this। तीन conditions देती हैं and आप अपने circle दा center find करना है। पहला देखो आप standard equation किवें लिखते हैं, x minus h square plus
y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर है h कॉमा k। अपना इंटरेस्ट है सिर्फ h एंड k फाइंड करन च, क्योंकि आपा की फाइंड करना है सेंटर। ठीक है, अपन की क्या है कि 0,0 तो पास कर रहे हैं, x की जगह ते 0 पर हो, y की जगह ते 0, तो की आ जाऊगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट 1,0 पुट करो, 1 माइनस h द स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋ। h ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ h ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ k ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ k ਸਕੁਆਇਰ 0, r ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ r ਸਕੁਆਇਰ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ h ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ h ਸਕੁਆਇਰ प्लस 2h इज इक्वल टू 0, आ चीज कैंसल। 2h इज इक्वल टू 1, h की आ गया 1/2। आ तो ऑप्शन अपना गलत हो गया कि h कितना आ गया अपने कोल 1/2। हुन देखो अपन नु की क्या है कि दोवें अपना सर्कल एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ये की कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इट मींस दोवां दे सेंटर्स दे विच जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा r1 प्लस r2। ठीक है, दोवां दे एदा सेंटर कितना है, सेंटर है 0,0 एंड रेडियस है 3। ठीक है, आपा की लेना है c1 c2 दोवां दे सेंटर्स विच डिस्टेंस इज इक्वल टू r1 प्लस r2। सेंटर्स दे विच डिस्टेंस रूट एदा सेंटर है h, k, h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर। सेंटर फर्स्ट सर्कल का कितना है 3 एंड सेकंड का कितना अपने कोल r। देखो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की जगह की लिखता आपा r स्क्वायर, द रूट इज इक्वल टू 3 प्लस r, r इज इक्वल टू 3 प्लस r की आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਲਸ ਟੱਚ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਟ ਇੰਟਰਨਲੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 3 ਆ ਰਿਹਾ। कॉन्ट्राडिक्शन इट मीन्स ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ r1 ਮਾਈਨਸ r2। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 3 ਮਾਈਨਸ r ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਮਾਈਨਸ r ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3/2। r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 3/2। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ k ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 1/4 k ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਕਿੰਨਾ ਸੀ 3/2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9/4। ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ k ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ 2 ਤੇ k ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ √2। k ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ √2। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ r1 प्लस r2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपने ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ r1 प्लस r2 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ r1 ਮਾਈਨਸ r2 ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, h ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ the equation of the parabola whose coordinates of the vertex and focus are this। ਆਪਾਂ ਨੂੰ coordinates vertex ਦੇ and focus ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ coordinate plane ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ vertex ਕਿੱਥੇ ਹੈ -2, 3 -2, 3 ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ vertex ਹੈ। ਇੱਥੇ vertex ਹੈ एंड फोकस किथे है 1,3। इत्थे अपने कोल फोकस है। ठीक है, इत्थों आपां नूं की पता लग गया
कि y इज इक्वल टू 3 अपनी गिवन पैराबोला दी एक्सिस है। क्लियर है? डायग्राम बनाने ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ y is equal to 3 ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ एक्सिस। एंड ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ एक्सिस ਕਿਵੇਂ फाइंड कर ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, चार ऑप्शंस है ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक्सिस फाइंड करके देखो, ਜਿਹਦੀ एक्सिस y is equal to 3 आई वो अपना आंसर है। एक्सिस किਵੇਂ फाइंड करते हैं देखो, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ देखो, ਇੱਥੇ x² दिख रहा है ਤਾਂ पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ਤੇ ਇਹਦੀ एक्सिस ਕੀ ਆਊਗੀ 2x - 2 इज इक्वल टू 0। ਇੱਥੇ y² ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ y ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, 2y + 2 इज इक्वल टू 0। ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟ y ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, 2y - 6 इज इक्वल टू 0। ਇੱਥੇ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ y इज इक्वल टू 3, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, hence option is answer is option number C। ठीक है, ਆਪਾਂ in detail solve भी कर सकते हैं, but direct अपने को by options हो रहा है तो ਆਪਾਂ fast as possible करना है। नेक्स्ट देखो, the point on the parabola this, इस पैराबोला के ऊपर आप पॉइंट फाइंड करना है। कंडीशन की देती है कि ऑर्डिनेट इज डबल द एब्सिसा। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की है डबल ऑफ x वाला कोऑर्डिनेट। हुन देखो y कोऑर्डिनेट की है डबल ऑफ x, x का डबल करांगे -6 तो आता आंसर नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ डबल करो -4, ਇੱਥੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਵੀ आंसर नहीं हो सकता। ਇੱਥੇ 8 है, ਇਹਦਾ डबल करो 4 ਦਾ डबल 8, ਇਹ आंसर हो सकता है। 3 ਦਾ डबल 6, ਇਹ ਵੀ आंसर हो सकता है। C ਤੇ D ਚੋਂ आंसर हो सकते हैं। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। देखो y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ करो 8 64, ਇੱਥੇ 12 * 4 48 नहीं कर रहा, इट मींस ये भी अपना आंसर नहीं है। 6 का स्क्वायर 36, 12 3 जा 36, तो अपने को ये सेटिस्फाई कर गया, इट मींस दिस इज आवर आंसर। तो ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ देखने कि -1, -5 इस पैराबोला ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, तो चेक करो y² - 8x, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆंसर ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड, जे इक्वल टू 0 आया फिर ऑन द पैराबोला, जे लेस देन 0 आया फिर इनसाइड द पैराबोला। ਹੁਣ देखो y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -5 ਭਰਾਂਗੇ, 25 -8 into -1, तो आंसर अपने कोल की आया पॉजिटिव, इट मींस किथे लाई कर रहा बाहर, आउटसाइड। ठीक है, ਹੁਣ देखो the equation of the parabola whose directrix is this and the focus is this। focus ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ and ਆਪਾਂ ਨੂੰ directrix ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇੱਕ जनरल point ਲੈ ਲਾਂਗੇ, P ਲੈ ਲਿਆ x, y। ਇਸ point ਦਾ ਜਿੰਨਾ distance focus ਤੋਂ ਹੈ उन्ना ही distance directrix ਤੋਂ ਹੈ। focus ਤੋਂ distance ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, x + 3 ਦਾ होल स्क्वायर plus y² is equal to इस point ਦਾ directrix ਤੋਂ distance the mod of x + 5, अपने को आंसर हो गया। ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व करना है, स्क्वायरिंग both sides करो, x² + 9 + 6x + y², इधर अपने को ओपन हो जाएगा तो 10x, this cancel out। तो ਹੁਣ देखो अपने को y² is equal 6x है, उधर जाके -6x हो गया तो 4x आ गया, +9 है, उधर जाके -9 तो +16, this is the required answer। clear है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the eccentricity of the hyperbola this, तो डायरेक्ट आप eccentricity किवें लिखते हैं, तो देखो जो हाइपरबोला ਦੀ eccentricity लिखनी है रूट ਦੇ अंदर, ऊपर दोवां ਦਾ +7 एंड y² ਦਾ कोएफिशिएंट 3, तो की आ जाएगा √7 / √3 एंड जो ਆਪਾਂ रैशनलाइज करांगे ऊपर नीचे √3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई, तो की आ जाएगा अपने को √21 / 3। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स सेंटर्ड एट 0,0, सेंटर 0,0 है एंड अपना एलिप्स पास कित्थों कर रहे हैं 0,4। x की जगह ते 0, y की जगह ते 4 पुट करके देखो केड़े ऑप्शन च सैटिस्फाई हो रहा।
x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 4 ਇੱਥੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ x 0 y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 नहीं सैटिस्फाई कर रहा है इत्थे भी नहीं कर रहा तो अपने कोल सिर्फ एक ऑप्शन ही है जिथे ये पॉइंट सैटिस्फाई कर रहा है सो दिस इज द राइट आंसर फर्दर अपन को सेंट्रिसिटी दा यूज नहीं लेने दी लोड नेक्स्ट देखो द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज दिस ट्रांसवर्स एक्सिस की देती है 12 इट मींस 2a इज इक्वल टू 12 a कितना आ जाएगा अपने कोल 6 तो अपने कोल इक्वेशन की हुंदी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इससे फॉर्म दिया इक्वेशंस है तो ए स्क्वायर कितना आ गया ए कितना आ गया 6 इट मींस थल्ले तो 36 होना चाहिए ये दोवें आंसर्स नहीं हो सकते ठीक है हुन देखो अपना कर्व कित्थों पास कर रहे हैं 8,14 तो एक्स की जगह ते 8 वाई की जगह ते 14 पुट करो इत्थे 8 पुट करो माइनस 14 दा स्क्वायर 196 अपॉन 196 इत्थे की आ गया -1 एंड इत्थे पुट करोगे 8 दा स्क्वायर 64 ओवर 36 ते इन्हां दोवां नूं सबट्रैक्ट करके अपने कोल 1 नहीं आ रहा तो अपने कोल आंसर की हो गया ऑप्शन नंबर बी इत्थे तुसीं पुट करके देखोगे तो पॉइंट सैटिस्फाई कर चुका ठीक है नेक्स्ट देखो द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट x, y whose sum of the distances from the fixed points this is 8 ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ P ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ A ए पॉइंट अपना B अपन की किया उन्होंने PA प्लस PB इक्वल टू 8 हुण देखो इन्हां दोवां दे विच डिस्टेंस फार्मूला लगावांगे तो x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस रूट इत्थे अपने कोल x प्लस 2 दा स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू 8 एक टर्म नु दूसरे साइड लेके जावांगे देन होल स्क्वायर रूट दे अंदर x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस रूट x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इत्थे हुण स्क्वायरिंग बोथ साइड करो इत्थे स्क्वायरिंग बोथ साइड करांगे तो रूट कैंसल x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर is equal to इत्थे a minus b the whole square लावांगे 64 plus x plus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square minus अपने कोल 16 root x plus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square हुण देखो अपने कोल x minus y minus 2 इत्थे भी y minus 2 इस पूरी टर्म ਨੂੰ ਹੀ कैंसिल कर दो ठीक है हुन करो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x जस्ट कैलकुलेशंस है नथिंग एल्स और कुछ नहीं कर रहे फॉर्मूला लगा के बस ओपन कर रहे हैं ठीक है इत्थे अपने कोल 4x माइनस 16 रूट x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दा स्क्वायर हुण देखो अपने कोल चीज कैंसल आउट हुण देखो इत्थे अपने कोल 4x है इधर जाके माइनस 4x हो जाऊगा तो की आ जाऊगा माइनस 12x ठीक है हुण देखो प्लस 64 है इधर जाके माइनस 64 तो प्लस 16 तो सी गई माइनस 64 इज इक्वल टू एंड अपने को लेते प्लस 4c एक मिनट रुको इधर देखो आप इस माइनस वाली टर्म नु इधर लेके आ रहे हैं 16 रूट दे नाल x प्लस 2 दा स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दा स्क्वायर बहुत इजीली है तुसी सॉल्व कर सकते हो ठीक है इत्थे अपने कोल की बचा 68 प्लस 4x
एंड माइनस द 8x सी प्लस 8x प्लस 16 सी अपने कोल इत्थे माइनस 16 रूट x प्लस 2 द होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने कोल इत्थे की आ जाऊगा 12x एंड अपने कोल की आ गया 68 माइनस 16 तो की आ गया अपने कोल 52 4 नाल डिवाइड कर दो 4 रूट x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नाल आपां डिवाइड किया सी 3 प्लस 13 ठीक है हुन कर दो अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 4 द स्क्वायर 16 एंड जो आप इत्थे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करांगे रूट कैंसल आउट ओपन कर दो इनू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 169 एंड अपने को इत्थे की आ जाऊगा प्लस 78x ठीक है हुन देखो आपां हुन बाय ऑप्शंस करेंगे इत्थे देखो 16x स्क्वायर इधर 9x स्क्वायर माइनस करांगे तो की आ जाऊगा अपने कोल 7x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर दा कोएफिशिएंट 7 आ रहा है ये दोवें ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हो गए हुन y दा कोएफिशिएंट चेक कर लो इत्थे की है 16 y स्क्वायर इधर y वाली टर्म है ही नहीं तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लियर है क्वेश्चन देखो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose end points of major axis and minor axis अपन ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਜੋ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਲਿਪਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ -11,1 7,1 ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ -11 plus 7 upon 2 1 plus 1 upon 2 अपने को क्या आ जाएगा -4 upon 2 and 2 upon 2 -2, 1 and equation of ellipse की होंगी x minus h square upon a square plus y minus k square upon b square is equal to 1 हुन देखो h अपने कोल की है -2 इत्थे -2 पुट करांगे की होगा x plus 1 the whole square बाय ऑप्शन देखो होर किसी भी ऑप्शन च ये चीज नहीं है इत्थे k दी जगह ते 1 पुट करो y minus 1 तो बाय ऑप्शंस आपने आंसर्स नहीं हो सकते दिस इज द राइट आंसर क्लियर है कोई होर कंडीशन यूज करने की लोड़ ही नहीं पई डायरेक्ट एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस दिते हुए आ उन्हां दा मिड पॉइंट फाइंड करो वही अपना एलिप्स दा सेंटर है ठीक है That's all for today, Deltas. Hit like if you like this video. Till then, keep learning, keep growing. Meet you in the next video with a new topic.